Class 10 Science, Life Process, Nutrition, Transportation, Respiration and Excretion. That is the chapter 7 and part 2. I am R.S. Prasad. So today I will start your second part of this chapter. Let us start what will be in your chapter. The sixth number, human transportation system is mainly of a blood vascular. हमेशा ध्यान रखना ब्लड ही हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बॉडी के अंदर. vascular system having the heart and the blood vessel. It is due to the heart and blood vessels and that is the arteries and the veins. इसके थ्रू ही हमेशा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है. That is the blood and the blood vessels, that is the arteries and the veins. Number 7, that the arteries carry the blood always from heart. आर्टरीज हमेशा हार्ट से लेकर के ब्लड चलती हैं बिकॉज इट इज द प्योर ब्लड. हार्ट वाइल द वेन्स कैरिड ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट्स, और हमेशा वेन्स जो है वो टुवार्ड्स द ब्लड हार्ट की तरफ रहती हैं. ध्यान रखना आर्टरीज हमेशा हार्ट की तरफ ले जाएंगी. आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट्स, ओके, एंड द वेन्स कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट. ये वेन्स जो है हमेशा हार्ट की तरफ होगी और ये हार्ट से लेकर के जाती हैं. सो नंबर 8, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एज दे सिंथेसाइज कार्बन कंपाउंड्स लाइक सुगर, स्टार्च in the presence of sunlight with the help of photosynthesis or any sunlight or light of similar to intensity with the help of chlorophyll by the process of photosynthesis. Most of the living words depends on the plant. जितने भी living words हैं mostly वो इसी plants पर ही निर्भर रहते हैं. So most of the living words depends on the plants. Now ninth one is the photosynthesis occur in chloroplast. Chloroplast में ये photosynthesis होती है, हमेशा ध्यान रखना, और in the presence of sunlight. Now 10th one is the plant convert light energy to chemical energy. Plants जो होते हैं क्या करते हैं, ये light energy को chemical energy में convert कर देते हैं. Now 11th is xylem and phloem are mainly vascular tissues. ये vascular tissues है, plants हैं, and that are present in all parts of the plants. स्टेम में भी होता है, ये लीफ में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, फ्लावर में भी होता है. ये हर एक जगह फोलम और जाइलम दोनों मिलते हैं. नाउ लेट अस द 12 पार्ट. सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द प्लांट्स वाया फॉलिंग लीव्स. पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. Leaves and flowers both are. Some others are stored in the vascles and the expelled from the plants of the body from the time to time. Now 13, gaseous exchange occurring mainly through the stomata and looses tissues in the plants. Let us start next one in our bodies. So that is the excretory system of our body, and these are the very important part of our body. So here is, let us start, it's the vein, it is the impure blood, it has impure blood, and it is artery, it has pure bloods, and it is coming from heart and it is towards going to heart. So it is the pair of kidney, and as you know, pair of kidney, it is the that is the apparatus which is used to filter the pure blood. इसमें जो इम्प्योर ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है और प्योर ब्लड इसको कहाँ मिलता है, वेन्स से. क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड ले लेता है और उसको फिल्टर करके आर्टरी को दे देता है. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर फिल्टर होता है, हमेशा ध्यान रखना. जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर फिल्टर्ड आउट, और वो मेनली जो है लिक्विड की फॉर्म में वाटर के साथ डिजोल्व होकर के किडनी से कहाँ आते हैं, यूरिनरी ब्लड्स में आते हैं, और यूरिथ्रा के थ्रू जो है ये आउटसाइड कर देते हैं. ये पेयर्स ऑफ होती हैं, ध्यान रखना. एक किडनी फेल होने पर दूसरी किडनी से भी आदमी जिंदा रहता है. सो इट इज़ नेसेसरी, इसलिए डबल होती हैं कि बाई चांस एक फेल हो जाए तो दूसरी वर्क करती रहती है, या एक नहीं भी काम करे तब भी दूसरे से काम चल जाता है. सो इन दिस प्रोसेस ओनली देयर आर द फिल्ट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड्स. So in this kidney, so many structures are the nephron. So it is the given of the nephron, and it is the very complicated structure. So here is the Bowman's capsules, and is the glomerulus, and here is tube in nephrons. These are the tubes, and here is collecting ducts. यहाँ पे ducts को collect करता है, and the branches of the veins,
एंड हेयर इज द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज टर्निंग किडनी, किडनी के लिए जो जाती हैं वो सब के लिए ये ब्रांचेस हैं। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको आपको लर्न करना है और डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाना है। सो इट इज नेसेसरी टू फॉर्म द डायग्राम इन योर कॉपी। Yes, let us start the next one. That is the hydrilla plant. It is the hydrilla plant, and it is the vertical inverted cone, and it is the conical vessel. So here is the oxygen release. So it is the practical in your एग्जामिनेशन में इसका प्रैक्टिकल होता है, ध्यान रखना। अब प्रैक्टिकल की कॉपी में ही आपको बताऊंगा कैसे ये होता है। मेनली इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ली जाती है लीव्स के द्वारा। ये लीव्स में देखो यहाँ पे ग्रीन स्टोमेटा होता है यहाँ पे दिया हुआ, और ये स्टोमेटा खुलता है आपका, ओपन होता है कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना होता है इसको। और इसके बाद जो है रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी बनता है तो ऑक्सीजन इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको आउटसाइड में रिलीज करता है। सो यू हैव टू सी इन दिस इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंज्यूम बाय द लीफ and chlorophyll and sunlight, they give the environment to do the chemical reaction, and in this chemical reaction it forms the glucose, carbon, oxygen and as well as water. So water तो plants में रह जाता है और ऑक्सीजन आउटसाइड आ जाती है, और ये कार्बोहाइड्रेट फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर। सो दैट इज द मेन थिंग and that reaction occurs in this plant. It is the hydrilla plant which is grow in the water. वाटर में ये अंदर ही ग्रो होता है, इसलिए इसको वाटर के अंदर डिप करके रखा जाता है। इसके अंदर इसको कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पे डिप कर दिया जाता है। यहाँ पर एक सोडियम कार्बोनेट का एक पुड़िया सी बांध के डाल देते हैं, और यहाँ से इसको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म मतलब मिलती है, और ये तुरंत रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका काम करता है और ऑक्सीजन फॉर्म करता है, और ऑक्सीजन फॉर्म करके ऊपर कलेक्ट होनी चालू हो जाती है। तो यहाँ ऑक्सीजन कलेक्ट होती है। यही प्रैक्टिकल आपके यहाँ इस ऑक्सीजन को जानने के लिए मैच स्टिक बंद करके ले जाते हैं इस पर, और यहाँ पर मैच स्टिक बुझ जाती है, और लेकिन ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, मैच स्टिक जलती रहती है बिकॉज इट्स हेल्प टू बर्न। सो लेट अस सी व्हाट विल बी हैपन इन योर स्टोमेटा। यहाँ पर ये आपका क्या दिया हुआ है, स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट इन द रीफ लिप। ये रीफ लिप में जो है आपको दिया हुआ है, तो ये आपको ग्रीन से जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहीं पर वो रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड से ले लेती है और क्या बनता है, वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ फॉर्म होते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाते हैं तो ये सारा का सारा किसको देता है, स्टेम को दे देता है ये, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इसके अंदर ये कैसे इनहेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाया हुआ आपको। इन साइड में ये स्प्रिंग टाइप के ये लगे रहते हैं, ये इसको ऊपर दबा करके खोल देते हैं स्टोमेटा को, और स्टोमेटा जैसे ही खुल जाता है वैसे ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा करके रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, और वहाँ से क्या बनता है, वाटर मिल जाता है उसको, और सनलाइट से एनर्जी मिल जाती है, और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और वाटर बनता है, और इसके बाद ऑक्सीजन फॉर्म होता है। सो लेट अस स्टार्ट द अदर टू जाइलम्स आर हियर, दैट इज द जाइलम एंड फोइलम। So these are working in the plants. So it is situated all the parts in the plants. So you can see this type. Here is the phloem and xylem. It is seen in your figure, and the xylem and phloem both are together here. So you can see in this structure, and it is the very micro structure which is kept by the microscope. So these are the phloem and the xylem. You can see in this structure there is the two parts, and always remember it is in all the parts of the plant के हर एक parts में होता है ये। So that is the location of vascular tissues on different parts of the Dictylogons plants. तो ये प्लांट्स में ये डिक्टोलेगन और ये मोनोसेटेडन दिए हुए हैं, इसमें स्टेम्स हैं, और ये वस्कुलर टिश्यूज दिए हुए हैं, और ये रूट्स हैं आपका। सो ये वस्कुलर टिश्यूज स्कैटरिंग इन द मोनोसाइटोडेन और फ्लावर प्लांट्स में है। तो इसमें आप लोग देख लेंगे इसको किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ये यहाँ पे दिखा रखा है, इसको यहाँ से एक लीव लेके कट करके यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से भी इसको कट मार करके यहाँ दिखाया हुआ है, और नीचे जड़ से भी आपको कट करके दिखाया है। तो मैंने बताया ये प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में मिलते हैं। सो दे फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो मेनली it is the two
that is the xylem and the phloem. So let us start. What is the difference between phylum and the xylem? So what is the difference is the question number 7. You have to write your answer also. So xylem and phloem. So first one is here. In the plants of the product transported in the xylem are water and mineral salts. Vessels are ट्रेचिड्स ऑफ जाइलम कंबाइन एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. इसमें वाटर एंड मिनरल्स जो है ट्रांसपोर्ट करता है. सॉल्ट्स पोर्स ऑफ रूट्स आर इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. आयंस की फॉर्म में सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है. व्हाट इज द फॉलम? फॉलम में क्या होता है? इन प्लांट्स फूड एंड द अदर प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फॉलम बाय द sheaves tubes of the phloem. Photosynthetic products are transported towards the roots, fruit and the regions of the growth. Transportation in the phloem take place of both the sides. So that is the difference between xylem and the phloem. You have to write in your copy. So let us start unicellular organism, that is the amoeba. How can eat and the process of eating and the excretion. So in this figure you can see here shows the intake of the food amoeba. We have studied that the bodies of the unicellular organisms are in the direct contact with the environment, thus gaseous exchange, food or excretory products move directly across the cell membrane and or any specific part of it. The life process of these organisms are carried out by different parts of the cell. ये आपका यूनिसेलुलर अमीबा है. अमीबा में फूड को कैसे लेकर के उसको डाइजेस्ट करके कैसे आउटसाइड करता है वो शो करेगा. पहले ये फूड को ले रहा है, ये फूड पार्टिकल कोई भी उसके पास आता है उसको अपने पास ले लेता है और इनसाइड कर लेता है. और इनसाइड करने के बाद इट इज़ द फॉल्स फूड है, ये सीडोपीडिया बोलते हैं इसको. एंड इट इज द न्यूक्लियस आप देख ही रहे हैं कहाँ पर है. इसके बाद फूड जैसे ही अंदर ले लेता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको रिलीज कर देता है. एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द ऑल द न्यूट्रिशन पार्ट फ्रॉम द पार्टिकल्स, उस पार्टिकल से सारे के सारे न्यूट्रिशन पार्ट्स ले लेता है और एब्जॉर्ब करके उसको बाकी रेस्ट पार्ट को आउटसाइड में निकाल देता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. What are the differences between the source of energy producer and the consumers? Consumers में और उसमें क्या डिफरेंस होता है? ध्यान रखना, प्रोड्यूसर तो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं यानी दे फॉर्म देयर ओन फूड एंड कंज्यूमर्स आर डिपेंड्स ऑन दीज प्लांट्स. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. प्रोड्यूसर प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, सब्सटेंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. Plants themselves prepare organic substance. In this reaction, carbon dioxide, water, chlorophyll and the sunlight are required. Always remember, in this reaction क्या क्या required होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड द सनलाइट. ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, दे रिक्वायरमेंट है. एंड दे रिक्वायर्ड एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाई प्रोड्यूसर्स प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मतलब ये फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड फॉर्म करते हैं. सो दैट वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस आर रिलीज्ड. ऑलवेज रिमेंबर, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस आर रिलीज्ड. दिस वे एनर्जी सोर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स प्लांट्स इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमेशा ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड बनाते हैं, स्वयं बना लेते हैं ये. लेकिन कंज्यूमर्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स आर डिपेंड्स ऑन दीज प्लांट्स ओनली. और इन प्लांट्स को लेकर के कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं और उसी का डिकम्पोजिशन करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. कंज्यूमर्स एनिमल्स आर रिक्वायर्ड फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर द सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए ये क्या चाहते हैं? इनको सब्सटेंस चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फॉर द फिजिकल ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर इन द एवरी सेल्स के रिपेयर के लिए भी होता है ऑफ द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन्स इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड. इसको हमेशा इनकी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की. सच सब्सटेंसेस विच रिलीज एनर्जी आफ्टर हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के बाद इनसे एनर्जी रिलीज होती है. आर हेल्पफुल
for growth of, it is the for growth, development and repair of the tissues of the body are known as food. इसी को हम food बोलते हैं. Thus energy source of the consumers animals is the food. Food ही consumer animals का source है energy का. So this is the difference between the producer and the consumer. So you have to write in your copies. Let us start the next question. What is the mutual relationship of animals and plants on the basis of food? Food पे मैंने बताया था इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है. तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा ही कुछ चलता है इसके अंदर. The plants are saying I am giving you oxygen but you give me carbon dioxide. So that is the exchange offers. So always remember plants are required to carbon dioxide which is released by the human bodies. So like start here, like all the organisms, green plants also required food. ग्रीन प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायर्ड होती है. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, ये मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिज्म, ये प्रिपेयर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस themselves. In this process carbon dioxide, water and chlorophyll and the sunlight is required. इन सब में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल की और सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी ये फूड अपना फॉर्म करते हैं. ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड ऑल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड release carbon dioxide which is used by green plants. हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है वो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिपेयर देयर फूड, फूड बनाने के लिए, बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रखते हैं. बट ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स. बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड्स रहते हैं. ऑन अदर ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन प्लांट्स प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज अ फंडामेंटल लिंक ऑफ द बायो फूड चेन. बायो फूड चेन के लिए फोटोसिंथेसिस जो है फंडामेंटल लिंक है. दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सो यू कैन राइट इन योर कॉपी एंड शो मी आल्सो आफ्टर कंप्लीशन. कंप्लीट करने के बाद मुझे कॉपी शो करेंगे और 1 PDF में शो करेंगे. कैम से जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसके वो लेंगे, फोटोज लेंगे और कैम से एक ही PDF फाइल में भेजेंगे अपने नाम से. चलिए लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl सीक्रेटेड इन द स्टोमक. ध्यान रखना स्टोमक में HCl बॉडी बनाती है एंड ये HCl क्यों होता है, टू किल द इंसेक्ट्स विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो दैट इज द आंसर. यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. स्टोमक इज द ब्रॉडेस्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ alimentary canal which contains the gastric glands of its wall. The gastric juice secretes by it contains proteins, digestive enzymes, pepsin and the renin along with the gastric machine. It in it by the production of HCl harmful or organism of the food are destroyed. ध्यान रखना हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये HCl फॉर्म होता है, मतलब बॉडी के अंदर बनता है और इसकी रिक्वायरमेंट रहती है. लेट अस स्टार्ट योर नेक्स्ट. द टेबल ऑफ रिडक्शन ऑफ द वेट ऑफ द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन. ये क्वेश्चन गिवन है आपके यहाँ, इस क्वेश्चन का कुछ आंसर हमें देना है. ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना. So this is the table of for this. So you can say here the surface on the Vaseline was applied here. None of these surface and both surface, upper surface, lower surface, and the loss of the weight is 40%, 2%, 36%, and 4%. The first question is going here, and answer will be here. So maximum transpiration took place from which surface of the leaf? कौन सी
लीफ की सरफेस पे होता है। द एक्सपेरिमेंटली इज परफॉर्म ऑन द अरहर लीव्स। अरहर इज द डिक्टोलेगडेंस plants and pores on the dictyloligneous plants are present only on the lower surface of the leaf. इसके lower surface पे रहती है leaf के। So therefore this leaves contains more pores on the lower surface. Lower surface पे more pore होता है इसका। So you have to write in this. Let us start the second part of this question. So that one is your answer. You have to write which surface do you think has maximum number of stomata. किस पे maximum number of stomata होती है? So you can see in this. So due to more loss of water, due to excess decreases in the amount of water, stomata close, as of result of which diffusion of carbon dioxide is affected, by which rate of photosynthesis decreases since plants prepare their own food by the photosynthesis. Thus due to decreases in the rate of photosynthesis, sufficient amount of food is not available. So that is the reason you have to do this. So let us start. The next one is, it is the next part of this question. What happen when a large amount of water is lost from a plant? अगर बहुत ज़्यादा प्लांट से वाटर लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा? That is the answer. Water release reducing hydrogen, therefore it is required to less quantity due to more amount of water or need substance. Process of the osmosis is affected. इसमें osmosis का process नहीं हो पाएगा. And by which photosynthesis process is affected. By this sufficient amount of food is not available in the plants. Plants में sufficient amount of food नहीं हो पाएगा. That means plant is dead. Plant dead हो जाएगा. So let us see the next one, and that is the, it is the digestive system in human beings. ये human being का digestive system है और इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा आता है बनाने के लिए. सो डायग्राम, स्केलेटन डायग्राम, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपी इन अ सिंगल पेज ओनली. सो दैट वन इज द माउथ. यहाँ से इनहेल करते हैं इसको, मतलब इनटेक करते हैं फूड्स को और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं ड्यू टू डाइजेस्टिव, फॉर द डाइजेशन. सो ये आपका ओफेगस है. इसके बाद ये स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पैनाक्रियाज है और ये गॉल ब्लैडर है, लीवर है यहाँ पे. एंड हियर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एनस. एंड दिस क्या होता है इसमें, पहले जब इसको छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं तो ये ओफेगस में फंसे ना, इसलिए इसको पास आउट कर जाता है. इसके बाद स्टोमक में आता है, स्टोमक से लीवर, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से क्या होता है इसमें, और पैनक्रियाज से. पैनक्रियाज से कुछ जो है टॉक्सिक कंपाउंड निकलते हैं जो यहाँ पे इंसेक्ट्स आते हैं बाहर से, जो हमने भोजन लिया है, इसमें जो भी फूड वगैरह आपने लिया उसके बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, वो आगे जाकर के हार्मफुल ना रहें. पैनक्रियाज से कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स निकलते हैं. एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में ये एब्जॉर्बेशन होता है, इनका एब्जॉर्ब करने के बाद जो है इसको एक्सक्रीशन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आउटसाइड कर दिया जाता है. सो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज. ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा था, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉर्म करना है. लेट अस स्टार्ट सम टेस्ट. ये है टेस्ट फॉर द फैट्स. फैट्स का हम टेस्ट कैसे करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू ही सारे टेस्ट होते हैं. सो रब अ पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. सब्सटेंस पहले ले लीजिए जिसका हमें टेस्ट करना है कि इसमें फैट्स है या नहीं है. टू बी टेस्टेड ऑन अ पीस ऑफ द वाइट पेपर. वाइट पेपर पे लेना है एंड अलाउ इट टू ड्राई, और सूखने तक रखना है. इफ द पेपर टर्न्स ऑयली एंड द ट्रांसलूसेंट, देन द सब्सटेंस टेस्टेड कंटेन्स फैट्स. अगर ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है और सूखने पर, तो इट इज द टेस्ट ऑफ फैट्स. नाउ टेस्ट ऑफ द प्रोटीन. सो हाउ कैन टेस्ट द प्रोटीन? सो लेट अस स्टार्ट. टेक 10 ml ड्रॉप ऑफ द सब्सटेंस. जिसका भी टेस्ट करना है उसका 10 ml लेना है या 10 ड्रॉप ले लीजिए. टू बी टेस्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में लेना है. इफ द टेस्ट ट्यूब इज इन अ सॉलिड, ग्राइंड इट एंड
पुट अ पिच ऑफ इट, मतलब पहले इसको लेना है, सुखाना है, सॉलिड को ग्राइंड कर लेना है और फिर इसको थोड़ा सा पाट लेना है इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर इसमें डिप कर दीजिए और इसमें डालने पर इसको डिजोल्व करना है। नाउ एडेड 2 ड्रॉप एंड 2% ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसमें कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप डालनी है जो 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। एंड द 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, और इसमें 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है। इट्स कलर टर्न्स वॉयलेट और पर्पल, इसका कलर जो है वॉयलेट कलर का या पर्पल कलर का फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स सब्सटेंस कंटेन्स प्रोटीन, ये प्रोटीन का टेस्ट है। नाउ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं वो भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करना है, पहले प्रिपेयर सॉल्यूशन करना है, सब्सटेंस जो भी है सब्सटेंस जिसका हमने टेस्ट करना है उसको सॉल्यूशन बना लेते हैं। एड 2-4 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं जो कि 1% होता है। अब ब्लू ब्लैक कलर इज गिव्स कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द स्टार्च, ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट स्टार्च क्या है, एड आयोडीन डायरेक्टली ओवर कट पोटैटो फॉर द टेस्ट, यानी पोटैटो के ऊपर भी आप डायरेक्ट डाल करके इसको चेक कर दे सकते हो टेस्ट को। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम किसके थ्रू करते हैं, आयोडीन के, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू हम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज इस लेसन को समाप्त